Hello, good morning, everyone. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Good Good morning, morning. ma'am. Good morning, Good ma'am. morning. Can you hear me? सुनाई दे रहा है Yes, मेरा ma'am. आवाज? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. So once again, good morning to everyone. Please unmute yourself, beta. Everyone, please. See, yesterday we were studying about verb. है ना? हम yesterday क्या पढ़ रहे थे? Verb के बारे में पढ़ रहे थे, isn't it? हाँ. So, do you have your copy, pen or pencil with you? Yes, Yes or ma'am. no? Ma'am. As I have written in the message that you have to be ready with your. Priyanka, please unmute yourself better. Too much noise is coming from your side. So please open whatever you have written yesterday. Okay? And now again I will be giving you some things to remember and how you have to learn that. Okay? So कल हम पढ़े थे verb के बारे में, है ना? So verb के बारे में two things I had told you, that regular Yes, verb and And irregular verb. irregular verb. Yes. So रिचा अनम्यूट करो बेटा. सारे बच्चे अनम्यूट करोगे तभी तो सुनोगे ना. So here हमने पढ़ा था regular and irregular verb. So regular verb में you know that ed will come or nt will come ना in the last. So those are your regular verb, and irregular verb, that is your, it should be the first form, second form, third form will be different or it will be same. Okay, so is it clear na? Concept is clear? Yes, ma'am. Yes, good. So again we had studied about the three forms of verb. First form, second form and third form. First form is present, Present. second form is past and third one is participle, past participle. Okay? Okay. Yes or no? Yes. So now I will give you something to write it down. Please take your copy and pen and please write it down. Verb form. Forms of verb. Okay? Three forms of verb. Now you have to write it down. Please write it down. Hold. H-O-L-D. Hold. Second form. Held. H-E-L-D. Held. Dilkumar, are you writing bete? Yes? मैम हो गया है. हो गया? And held. First one is hold, held, held. Present is hold. Hold मतलब पकड़ना, कुछ चीजों को hold करना, पकड़ना. ठीक है? Okay, hold, held, held. H-E-L-D, held. So participle also will be held. So you can imagine or you can recognize this is a regular verb or irregular verb. मैम irregular verb. How can you Ma'am, regular. Third form is held. H-E-L-D, held. So this is, you can easily recognize, unmute कर लो बेटे. You can easily hold, held, held. So this is your regular verb because past form and participle form is the same. हाँ? ठीक है? Regular verb. Yes, ma'am. Okay. Now next one you write it down. दो टांगे होते हैं लेकिन Himanshu, please unmute yourself. Now dig, D-I-G, dig मतलब खोदना है, मिट्टी को खोदना. Yes, dig, D-I-G, dig. Past में D-U-G, dug. And third one is your participle, that also is D-U-G, dug. Dig, dug, dug. Okay. मैम regular. Yes, Ma'am, this is regular your verb.
रेगुलर रेगुलर मैम फिर से बताना। मैम रेगुलर वर्ब है। हाँ अनम्यूट कर लो, आवाज नहीं करोगे सारे बच्चे, क्वाइट हो जाओ। डिग डग डग, DIG डिग, DUG डग, DUG डग, करेक्ट? यस। यस मैम। हाँ नेक्स्ट वन यू राइट इट डाउन बेटा। फ्लाई, फ्लाई मतलब उड़ना, जब बर्ड्स फ्लाई करते हैं ना। यस, FLY फ्लाई। फ्लू, पास्ट टेंस में फ्लू, FLEW, FLEW फ्लू। थर्ड वन इज फ्लोन, FLOWN फ्लोन। मैम इर्रेगुलर वर्ब। Yes, this is irregular verb. Yeah, you know that. मैम How में do क्या you? बताए? मैम बेटा, क्या? बिकॉज मैम पास्ट एंड पास्ट पार्टिसिपल आर फ्लो नॉट में क्या बताए? Yes, past and past participle are not the same. यस मैम। All the forms are different here. Fly also is different here. To मैम उड़ना। and flown. They are not the same. Past and participle spelling are not the same. So you can recognize this easily. This is a irregular verb. ठीक है? Clear? यस मैम। यस मैम। Yes, ma'am. Then next one you write. Think, 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 thought. THINK, think. Think मतलब सोचना, सोचा, सोचना. And next one is past. Past is thought. THOUGHT, thought. Third form also is the thought. Clear? मैम इसे रेगुलर वर्ब। पहले क्या बताए? मैम ये क्योंकि same पास्ट है। है, पास्ट हाँ, yes, past and past participle are the same. That is why you can say this is a regular verb. ठीक है, समझ में आया? अभी मैं एक चीज Yes, ma'am. बताऊंगी आप लोग को. यू हैव टू पे अटेंशन. ओके, सो देयर आर 3 कैटेगरीज. इसको हम 3 कैटेगरीज में बांटते हैं. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एक फर्स्ट कैटेगरी में जो होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल कट कट कट, तीनों का सेम होता है ना? यस, it has no change. It has no change. So this is a irregular verb, है ना? And second one, second category you see, second category में you have two verb has the form like a different form, है ना? Two verbs are having different form. जैसे for example go, went, gone. जैसे एक वर्ड को ठीक है, अलग अलग हो जाना. हाँ अलग अलग हो जाना, है ना? And this having only 2 forms are different. Only one is different, or 2 will be different sometimes, and sometimes 3 will be same. समझ में आया? Yes, Yes, ma'am. दिल कुमार, समझ में आया बच्चे? Yes, ma'am. यस मैम। अभी yes. तो यू अनम्यूट कर लो बेटा, आवाज करते हो तो आप लोग नहीं सुनोगे, ठीक है? सो या नाउ अभी आप लोग को एग्जाम में भी आएगा, तो आप यू विल बी एबल टू राइट, यू विल बी एबल टू Yes, मेक ma'am. वर्ब फॉर्म कैसे बनाते हैं? Yes, ma'am. Very good. So I will give you now. You have to make, okay, and recognize Okay, ma'am. which form it is. Okay, forgive. भूल जाना, FOR, भूल जाओ। forgive. भूल जाना नहीं बेटा, forgive माफ करना. Forgive लिखो. मैंने तो Write सुना it था down. forgive मतलब भूलना होता है। No, मैम बहुत forgive. शोर। Forget अच्छा, का मतलब forget, भूलना forget. है. हाँ forget, forget का मतलब भूलना है, मैं और खुद ही forgive भूल का गया था। मतलब माफ करना. Ma'am, regular. किसने बोला? Forgive का second form क्या होगा? What will be the second form? मैम forget। Yes, forgive. And third form?
थर्ड फॉर्म Ma'am, forgive. Ma'am, it is irregular. Forget. forgave, forgiven. Okay, forgive, forgave, forgiven. So is it a regular or irregular? Ma'am, irregular. Irregular. How do you know? Irregular. How do you know? Ma'am, because ma'am, past and past participle are not same. Ma'am, past or Yes. ma'am, past and ma'am, both are Hmm. Yes, both are not, three are not matching each other. Two are different. जैसे forgive and forgiven. This is completely different, है ना? Forgive also is different. Forgive and forgiven. So यहाँ पे बेटा all three are different. So we can say this is your irregular verb. Ma'am, ma'am, हाँ, yes बेटा बोलो. ma'am, forgive की ma'am second form क्या है ma'am? Forgave बेटा. forget. Forgave. Forgave. Ma'am, third form. Ma'am, third form. Third form forgiven. 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 Okay ma'am. Clear बेटे? Yes ma'am. Now Yes, ma'am. और एक अभी पढ़ेंगे आगे. Now you have to some things you have to write it down. जैसे कि अभी ध्यान से पहले सुनोगे then only. Okay? When I will tell you to write, you have to write. When I will ask you, then only you have to answer me. So now you listen carefully. So यहाँ पे verb जो है एक एक्शन, किसका एक्शन को बताता है? सब्जेक्ट का. ओके, जैसे यू विल सी हियर वर्ब में यू विल सी मेन वर्ब भी और हेल्पिंग वर्ब. हेल्पिंग वर्ब किसको बोलते हैं? जो हेल्प करता है, जैसे इज, वाज, वेयर, कैन, कुड, विल, वुड, मे, माइट, ये सारे हमारा हेल्पिंग वर्ब है ना? हेल्प करता है. जो मेन वर्ब को हेल्पिंग वर्ब हेल्प करता है सेंटेंस बनाने में. ओके, सो मेन वर्ब किसको बोलते हैं? जैसे फ्लाई, स्लीप, रन, eat. Ma'am, action word. Yes, action word, that is your main verb. Okay, and which is helping verb, that only it helps. जैसे कि am है ना, is, could, can, तो ये सारे हमारा हेल्पिंग वर्ब है. ओके, दिल कुमार बेटा आप अनम्यूट कर लो पहले प्लीज. So you listen. Dil Kumar, please unmute करो बेटे. Unmute yourself. So verb has two unique qualities. अभी हम उसके क्वालिटी के बारे में बताएंगे हम. Okay, first now you are very much sure about regular irregular verb. वो पूरा क्लियर हो गया है ना दिमाग में आप लोग का? Yes, ma'am. Yes ma'am. हाँ, अभी बेटा हम क्या पढ़ेंगे? इसके क्वालिटी के बारे में पढ़ेंगे. जैसे इट वर्ब हैज टू क्वालिटीज दैट नो इन पार्ट ऑफ स्पीच. दो क्वालिटी है, जैसे कि द वर्ब फर्स्ट क्वालिटी द वर्ब हैज इज द चेंज डिपेंड ऑन द सब्जेक्ट. अब फर्स्ट वाला क्या है? वो चेंज होता है सब्जेक्ट, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट. ओके, इट डिपेंड्स ऑन द सब्जेक्ट. जो वर्ब है ना वो डिपेंड किसके पे होता है? डिपेंड. आकर्षित प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ. किस पे डिपेंड होता है बेटे? सब्जेक्ट Ma'am, पे subject डिपेंड पे. होता है. Subject पे. यस, Ma'am, subject. सब्जेक्ट पे फर्स्ट फॉर्म. ठीक है, फर्स्ट थिंग उसका क्वालिटी क्या है? वो सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करता है. फर्स्ट क्वालिटी. ठीक है, सेकेंड क्वालिटी ध्यान देना. सेकेंड क्वालिटी ऑफ द वर्ब इज द चेंज दैट डिपेंड्स ऑन द टाइम ऑफ स्पीच. फर्स्ट में क्या होता है? वो सब्जेक्ट पे डिपेंड होता है. और सेकंड जो है क्वालिटी उसका, वो है जो चेंज होता है किसके अकॉर्डिंग? टाइम ऑफ स्पीच. आया समझ में? Yes, ma'am. यस. Ma'am, पहला please repeat वाला again. क्या होता है? वो सब्जेक्ट है. यस, फर्स्ट क्वालिटी द वर्ब हैज फर्स्ट क्वालिटी इज दैट इट डिपेंड्स ऑन द सब्जेक्ट. ठीक है, किसके ऊपर डिपेंड करता है? सब्जेक्ट के ऊपर. Subject. क्लियर? हाँ. एंड Yes ma'am. सेकेंड क्वालिटी जो है
सेकेंड क्वालिटी है बेटा, वो है दैट इज डिपेंड ऑन द टाइम ऑफ स्पीच। टाइम ऑफ स्पीच। फर्स्ट क्वालिटी वर्ब हैज वर्ब चेंज डिपेंडिंग ऑन द सब्जेक्ट। व्हाट डू आई मीन दैट? एग्जाम्पल में जैसे कि आई एम टॉल, एग्जाम्पल, ठीक है? ओके, अनम्यूट कर लो ध्यान से। नाउ यू राइट इट डाउन, write it down. I am tall. You write it down and you show me your copy now. Example में I am tall. I am tall. मैं बड़ा हूँ. Okay, I am tall. Please write it down in your copy. Unmute yourself, बेटे. I am small. I am tall. So here you will see I is your subject. आप लोग पढ़े हैं ना? I is your. Here you will see I is your subject. Okay, I को अंडरलाइन करो बेटा and you write S. I को अंडरलाइन करो and you write S. S stands for subject. ठीक है? and यहाँ am, am. हाँ बेटे, what did you say? ना आप फिर से बताना ये वाला। हाँ बता रही हूँ, ठीक है? एग्जाम्पल में लिखाई हूँ, आई हैव गिवन यू वन सेंटेंस, आई एम टॉल, TALL, टॉल। आई एम टॉल। आई विल सी योर कॉपी, एवरीवन यू विल शो मी योर कॉपी, ओके? सो प्लीज राइट इट डाउन। सो हियर इन दिस सेंटेंस आई जो है ना बेटा, दिस इज योर सब्जेक्ट एंड दिस इज योर फर्स्ट पर्सन। I is your subject. So I को अंडरलाइन करो यहाँ पे and wait after that, अभी नहीं, अनम्यूट कर लो। आकर्षित भी अनम्यूट नहीं की है बेटे, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ, so much noise is coming. आकर्षित प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ, we are getting disturbed बेटा। I is your subject, am यहाँ पे देखो, this is your helping verb, am. You make it underline and you write V. V stands for verb. Did you write? Yes, ma'am. Repeat again. Yes. Am है बेटा आप लोग का helping verb। किसका कैमरा? Ma'am, repeat again. I am tall, ये एक सेंटेंस है, ठीक है बेटे? I हमारा सब्जेक्ट है, तो I को अंडरलाइन करके S लिखो। S stands for subject। लिखा? Okay, ma'am. Okay, ma'am. उसके बाद am। M कीजिएगा। am I है इसीलिए am होगा। यदि यहाँ पे सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन सिंगुलर होता, देन यू विल चेंज दिस am into is और यू विल चेंज into are। I के साथ हमेशा am होता है। अब ध्यान दोगे तभी समझ में आएगा बेटा। I is your फर्स्ट पर्सन, ठीक है? I हमारा क्या है? फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन। ठीक है, फर्स्ट पर्सन बोलते हैं I को। ओके, तो यहाँ पे आई, मैं, आई मतलब मैं ना, तो मैं भी एक सब्जेक्ट हूँ। बहुत बड़ा हूँ। यस, आगे नहीं कुछ बोलोगे, ओनली सब्जेक्ट को अभी समझो, ऑल ऑफ यू प्लीज। अभी सब्जेक्ट आई है, दिस इज फर्स्ट पर्सन। अभी हम वर्ब के बारे में पढ़ रहे हैं, दैट इज योर एम। एम हमारा हेल्पिंग वर्ब है बेटा। ओके, we are studying about verb na, so I am making you understand the concept. मैम I हमारा subject है। आई हमारा फर्स्ट वर्ब है। नहीं, वर्ब नहीं है नितिन। I कैसे वर्ब होगा? फर्स्ट पर्सन मैं इतना सब्जेक्ट है। मैम टॉल वर्ब है। I हमारा वर्ब I नहीं है बेटा, मैं इसी चीज को तो आप helping लोगों को verb क्लियर है। कर रही हूँ। I हमारा हेल्पिंग वर्ब भी नहीं है, ये सब्जेक्ट है। I is your subject। मैम उसी के मैम और पूरा am जो है ना, हेल्पिंग वर्ब। am जो है ना बेटा,
am जो है ना वो हमारा हेल्पिंग वर्ब है। क्लियर हुआ? यस जो मैम। हम वर्ब के बारे में पढ़ रहे थे Yes, अभी मैं ma'am. 2 चीज बताई थी ना, वर्ब एक मेन वर्ब होता है और एक हेल्पिंग वर्ब होता है, रेगुलर वर्ब होता है और इरेगुलर होता है। Yes, ma'am. मैम जैसे कि आई हमारा सब्जेक्ट है और एम हेल्पिंग वर्ब है। हाँ करेक्ट, अभी anything पकड़े हो आप, अभी पकड़े हो आप। आई हमारा सब्जेक्ट है, एम है हमारा हेल्पिंग वर्ब और टॉल क्या है जानते हो? टॉल मैम Yes, ma'am. Ma'am, Predicate. वो वर्ब मैम वर्ब। नो Ma'am, वर्ब verb नहीं है। है बेटा, मैम नहीं predicate. नहीं नहीं वर्ब नहीं है। लो helping verb. Predicate है ना वो? अनम्यूट करो सारे बच्चे, अनम्यूट कर लो एक बार, अभी ध्यान से समझो। ठीक है, वर्ब जो होता है मैं हमेशा बोला है ना, दिस इज योर एक्शन वर्ड, और हेल्पिंग वर्ब होता है जो मेन वर्ब को क्या करता है, हेल्प करता है। तो मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब भी होता है। टॉल आपकी एडजेक्टिव है, खूबियां बताता है बेटे। आप कैसे हो, टॉल हो, लंबे हो, तो आपका साइज को बता रहा है ना। Yes, ma'am. हाँ, तो वो हमारा है, वर्ब नहीं होगा, इसको हम एडजेक्टिव बोलते हैं। अभी मैं मैम पढ़ाऊंगी जैसे कि उसको। आई मैम हाँ सब्जेक्ट है और एम हेल्पिंग वर्ब और स्मॉल एडजेक्टिव है। हाँ, तो अभी हम वर्ब के बारे में पढ़ रहे हैं ना बेटा, तो वर्ब को फोकस करेंगे, उसके बाद आई विल टेक योर एडजेक्टिव, देन यू विल अंडरस्टैंड बेटर, है ना। जो हमारा खूबियां को बताता है ना, हमारे स्टेट को बताता है, जैसे कि हम कैसे हैं, टॉल हैं, स्मॉल हैं, फेयर हैं, डार्क हैं, हैप्पी हैं, सैड है, ये सारे हमारा एडजेक्टिव में जाता है ना। यस Yes, ma'am. ठीक है, तो अभी हम Yes, ma'am. मेनली फोकस करेंगे बेटे वर्ब में। तो हमारा हेल्पिंग वर्ब, यदि यहाँ पे आई के जगह पे शी लगा देते हैं, ओके, शी क्या है पता है आप लोग को? थर्ड पर्सन सिंगुलर। जहां पे भी थर्ड पर्सन सिंगुलर आता है, देयर वी राइट इज, IS, इज। शी इज टॉल, समझ में आया? शी Yes, Helping ma'am. words is होगा. हाँ, तो यहाँ पे यू विल नॉट मेक मिस्टेक, शी एम टॉल नहीं लिखोगे, दैट विल बी रॉन्ग स्टेटमेंट। मैम सी इज टॉल। शी She is इज tall. टॉल, तो इज जो है ना बेटा, दैट इज योर हेल्पिंग वर्ब। गॉट माई पॉइंट? Yes, ma'am. यस, शी के साथ इज लगेगा, यू के साथ ना, यू इज व्हाट, यू इज योर सेकंड पर्सन, है ना। आप मैम लोग आर पढ़े हो लगेगा. फर्स्ट पर्सन? You हाँ have. यस, यू के साथ मैम आर यू लगेगा. यस करेक्ट, यू के साथ हमेशा आर का यूज होता है। यू आर टॉल। मैम you के साथ have भी तो होता है. You have. बेटा अभी हमने वर्ब मेन ये क्या बोलते हैं, हेल्पिंग। यू आर टॉल, मैम यू सी आर मैम थर्ड मैम इज मैम हेल्पिंग है और मैम यू के साथ आर लगेगा ना। तो हाँ, आर यू के हेल्पिंग साथ वर्ब. आर लगे तो आर हमारा हेल्पिंग वर्ब है। यस Clear? मैम. शी के साथ क्या लगेगा मैम? मैम शी के टी साथ के साथ इज लगेगा बेटा, Is. इज। मैम इज क्योंकि लगेगा वो ना शी के साथ. हाँ यस, इज के साथ, सॉरी शी के साथ इज लगेगा, क्योंकि दैट इज योर थर्ड पर्सन सिंगुलर। सिंगुलर. थर्ड पर्सन सिंगुलर हम किसको बोलते हैं? शी, ही, He को. इट। ही हिम शी नहीं इट. होगा, हाँ, ही, शी, इट को ऑलवेज व्हेन यू राइट शी और ही और इट, उसके आगे हेल्पिंग वर्ब इज लगेगा। He is small, he is fat, he is thin, she is happy, तो she और he, it is raining, है ना। तो you will see here it और she और he के साथ हमेशा is का प्रयोग होता है। यस मैम. और you are, we are, they are, got it? मैम. यस मैम. Yes, ma'am. you के साथ बेटा, और हाँ you हमेशा are, आर लगता है. we are, they are, ओके, ऐसा होता है। देन आई के साथ एम, आई इज नहीं लगाओगे, स्टेटमेंट विल बी रॉन्ग।
आई के Ma'am, साथ I- हमेशा मैम आई के साथ एम लगेगा, इट एंड पास्ट मैम इट के लिए and इज लगेगा, और मैम सी के लिए इज लगेगा, योर के लिए Hello. आर लगेगा, वी के लिए आर लगेगा। सो यहाँ पे पास्ट में जब जाओगे, पास्ट टेंस में, तो आई वॉज होगा ना, इज के आई एम के जगह पे आई वॉज होगा, was. आई वॉज। हाँ, वो चेंज हो जाता है पास्ट। मैम वर होगा ना? हाँ, मैम होमवर्क क्या होगा? Ma'am, present Homework में अभी will लग कीजिए। जाएगा। विल, Sir, ma'am, प्रेजेंट में sir, विल ma'am, नहीं future लगेगा में बेटा, will दैट लग इज जाएगा। फ्यूचर। आई एम स्मॉल इन हाइट, यस, आई इज योर होमवर्क में क्या सब्जेक्ट। होगा? होमवर्क में आई विल गिव यू बेटा, डोंट गेट मैम आप इनटू पिक्चर खींच के भेज देना मैम, मैं आप पिक्चर पे खींच के भेज देना मैम इनकी। ओके, सो यहाँ पे यू विल नो दैट अभी आप लोग का कंसेप्ट क्लियर हो गया। हेल्पिंग वर्ब वेयर यू हैव टू यूज, यस आई मैम। के साथ क्या लगाता है, ही के साथ क्या लगाते हैं, दे, वी, यू के साथ क्या लगाते हैं। You नाउ इट इज are, they क्लियर। are. हाँ, क्लियर? यस Yes, ma'am. नाउ Yes, नाउ ma'am, यू clear. अंडरस्टैंड। Yes, ma'am. इज इट क्लियर नाउ? क्लियर हो गया बच्चों Yes, को, ma'am. सारे Yes, बच्चों को? ma'am. ठीक है। यस मैम मैम। एक बार फिर से समझा दो मैम। कौन सा चीज, कौन से वाला टॉपिक बेटे? मैम कौन सा यही वाला, मैम यही जो मैं अभी बता रहे थे। अभी नितिन को तो समझ में आ चुका, तो और वापस क्यों पूछ रहे हो बेटा? कौन सा क्लियर नहीं हुआ है वो पूछो मुझे। मैम जिसमें सी और यू वाला मैम कंफ्यूजन। अच्छा ठीक है, बता रही हूँ। शी, ही और इट, ये तीन चीज है ना, दिस इज थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर वी कॉल। ओके, इसको हम क्या बोलते हैं? थर्ड पर्सन सिंगुलर। यदि थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो ऑलवेज हमारा प्रेजेंट टेंस में हेल्पिंग वर्ब इज लगेगा। Is. ठीक है, इज लगेगा, आई एस इज। ठीक है, और पास्ट में जाओगे तो वाज लगेगा। क्लियर? Yes, ma'am. यस मैम क्लियर। हाँ ठीक। अभी सेकेंड क्वालिटी देखो ध्यान से, इज वर्ब चेंज डिपेंडिंग ऑन द टाइम ऑफ स्पीच। अभी फर्स्ट वन तो क्लियर हो गया हमारा, अभी सेकेंड वन को देखो कि सेकेंड क्वालिटी उनका क्या है। ये चेंज होता है डिपेंडिंग ऑन द टाइम ऑफ स्पीच। टाइम ऑफ स्पीच पे डिपेंड करता है। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय, क्या उसके मतलब क्या होता है? जैसे कि Ma'am? यू विल सी वेदर वी आर टॉकिंग Ma'am, अबाउट द time to पास्ट stop. इवेंट। सेकेंड पार्ट में देखो बेटा, अभी ध्यान से सुनोगे। हिमांशु प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ, नाउ लिसन केयरफुली बेटे। सो यहाँ पे टॉकिंग अबाउट द टाइम ऑफ स्पीच, जैसे कि अभी मैं पास्ट इवेंट बताई ना, पास्ट इवेंट का मतलब पास्ट जो हो चुका है ऑलरेडी, ओके, और फ्यूचर होने वाला है। ओके, पास्ट, नाउ वी आर इन प्रेजेंट, सो पास्ट में क्या हुआ है एंड फ्यूचर में अभी क्या होने वाला है। ओके, सो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल, मेरी कम्स हियर रेगुलरली, अभी एवरीडे प्रेजेंट में मेरी कम्स, कम कम्स, थर्ड पर्सन सिंगुलर जो ही और शी, इट एंड नाउन जो है, नाउन समझते हो बेटे? नाम, जैसे हिमांशु, नितिन, दे आर नाउन। जो भी नाम है आप लोग का, यस, नेमिंग वर्ड इज योर नाउन। सो यहाँ पे आप लोग का और एक चीज मैंने ऐड कर रही हूँ बेटे, शी, ही, इट के साथ नाउन होता है तो ऑटोमेटिक आपके वर्ब जो है ना, मेन वर्ब, नॉट हेल्पिंग वर्ब, अभी Change मेन हो वर्ब जाता में आई हूं मैं, चेंज हो जाता है, एस और ईएस लगता है। नितिन कम्स टू स्कूल एवरी डे, रिचा कम्स टू स्कूल एवरी डे। इस तरह के आपको बनाना पड़ेगा, नेमिंग वर्ड आर कॉल्ड नाउन। ठीक है, कम के साथ कम्स हो Yes, जाता ma'am. है, आकर्षित कम्स टू स्कूल एवरी डे। Yes, ma'am. तो यहाँ पे कम के साथ क्या जुड़ गया है बेटा? एस प्रयोग हुआ है, S और ES. Ma'am, S or yes. एस और ES है ना। सो हियर एस और ES मतलब कम में तो ऑलरेडी ई है ना, इसलिए ओनली वी हैव टू यूज एस। रिचा अनम्यूट कर लो बेटे, आवाज आ रही है आपकी तरफ से।
गॉट इट? सो यहाँ मेरी इज नाउन है ना। यदि मेरी को आप प्रोनाउन करोगे तो मेरी की जगह पे क्या लिखोगे? शी लिखोगे या ही लिखोगे? मैम शी। Ma'am, शी। she. क्यों शी लिखोगे? मैम शी। यस, शी इज अ गर्ल ना। मेरी इज ए गर्ल है ना अनमोल? यस मैम। मेरी लड़की है ना। यस लड़की है या लड़का है? मेरी लड़की है या लड़का है? लड़की है। यस, तो लड़की की जगह के लिए हम क्या लिखते हैं? प्रोनाउन में जब लगाते हैं तो She. मेरी की जगह पे शी लगाते हैं। क्लियर? सो शी के साथ भी कम्स होगा। शी कम्स टू स्कूल और शी स्टैंड्स फॉर, और यहाँ पे यू विल सी मेरी या तो गीता। यस, मेरी कम टू स्कूल एवरी डे। यू कैन से मेरी कम्स, राम कम्स, रोहित कम्स। ओके, तो यहाँ पे कम जो है मेन वर्ब है, दिस इज योर एक्शन वर्ब। वो आते हैं, स्कूल आता है ना, डेली आता है वो स्कूल, ठीक है, एक्शन करता है ना वो। यस, तो ये मेन वर्ब हो गया। और सब्जेक्ट को Got बार बार it? चेंज कर सकते हैं। सब्जेक्ट को अब जैसे मेरी सब्जेक्ट है ना बेटा, इसको सब्जेक्ट को आप चेंज कर सकते हो, किसी मेरी की जगह पे सीता भी लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम। क्लियर? यस मैम। समझ में आया बेटा? सब्जेक्ट आप चेंज कर सकते हो, उस सब्जेक्ट की जगह पे आप नाउन और प्रोनाउन भी लगा सकते हो। यहाँ पे प्रोनाउन, नाउन की जगह पे प्रोनाउन लगा सकते हो, प्रोनाउन की जगह पे नाउन लगा सकते हो, और वर्ब तो आपके एस और ईएस का फॉर्म ही लगेगा। ओनली थर्ड पर्सन सिंगुलर में ध्यान देना, ओनली प्रेजेंट टेंस दैट ऑल्सो। कुछ डाउट है बेटे? अंकित, यस मैम। डाउट है? यस मैम। बताओ कौन सा डाउट है, टेल मी। मैम मैम ये एस और यस मैम किस में लगेगा मैम? एस और यस बेटा जो नाउन होता है ना, जैसे आप अंकित हो ना, अंकित, राज, ओके ठीक है, राज एक नाउन है बेटा, नाम है ना आपका राज। तो अभी मैं बताई कि नाम के साथ हमेशा ये एस और ई एस लगेगा मेन वर्ब में, लेकिन ओनली प्रेजेंट टेंस में। जो वो प्रेजेंट टेंस में होता है तब राज गोस टू स्कूल, गो के साथ ई एस लगेगा, गोस, प्रेजेंट टेंस में ना। राज गोस टू स्कूल, प्रेजेंट टेंस है, एस और यस लग जाएगा। हाँ, एस और ई एस का ही फॉर्म लगेगा। आपको मैं टेंस पढ़ाऊंगी अभी अच्छा से, आफ्टर दिस आई विल फिनिश, देन आप लोग को ये भी नॉलेज दूंगी कि कहाँ पे एस और ई एस लगता है, कहाँ पे नहीं लगता है, दैट ऑल्सो आई विल टीच यू, है ना। सो राज गोस टू स्कूल, लेकिन यहाँ पे देखो आई यदि लगा दिया, बी केयरफुल, आई लगा दिया तो क्या होगा? आई गो टू स्कूल। एम होगा, एम। एस और एस, नो 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 नो, आई एम गो टू स्कूल नहीं होगा। यू सी, हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाना है बेटे, यहाँ पे आपको मेन वर्ब केवल लगाना है, आई गो टू स्कूल, ठीक है। मेन वर्ब में तो नाम लगा सकते हैं। स्कूल मेन वर्ड है। नहीं, मेन वर्ब जो है गो जिसका फॉर्म बनता है ना, कल मैं बताई थी, गो वेंट गॉन, यस मैम। जिसका फॉर्म बन रहा है ना, वही हमारा वर्ब है, एक्शन वर्ड है। वो स्कूल जाता है, ही गोस टू स्कूल, ही गोस टू स्कूल। बट यदि ही के जगह पे आई लगाओगे ना, तो आई इज योर फर्स्ट पर्सन, तो आई गो टू स्कूल, ओके। आई गो टू स्कूल लिखोगे। मैम आई इज फर्स्ट पर्सन। हाँ, आई फर्स्ट पर्सन है और सब्जेक्ट है, और गो है आपका हेल्पिंग वर्ब, तो आई के साथ गोस नहीं होता है, स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा। आई के साथ हमेशा वर्ब वही स्टैंड होता है, जो वर्ब दिया जाता है उसी के साथ रहता है, वो चेंज नहीं होता है। आई फर्स्ट पर्सन है, इसीलिए वर्ब में नो चेंज,
I go to school. Raj goes to school, but I go Ma'am, to school. मैम जब मैम राज किसी नाउन है ना? यस मैम किसी पार्टिकुलर मैम पर्सन का मैम नेम लिया जाएगा तो मैम उसके साथ मैम वो लगे मैम उसके साथ हाँ, ऐसा किसी पर्सन के साथ लगाओगे वर्ब तो एसोरियस होगा, या थर्ड पर्सन भी लगाओगे वो भी सिंगुलर होना चाहिए बेटे, यस ठीक है? सिंगुलर होगा तभी वर्ब में आपका एस और ईएस लगेगा। यू जैसे कि आपका मैंने जहां पे आपको एक चीज ध्यान देना है, इज लगाते हो ना, इज कहाँ लगाते हो? सिंगुलर फॉर्म में ना? यस, हाँ। तो इतना ध्यान देना, दिमाग में रखना इस चीज को कि वेर एवर यू आर राइटिंग दैट इज जैसे कि राम इज गोइंग टू स्कूल, यदि उसको आप, वो तो कंटिन्यूअस टेंस में चला गया, यदि उसको प्रेजेंट में बनाओगे तो राम गोज टू स्कूल, इस के जगह पे वो गोज हो गया, एस और ईएस फॉर्म चेंज कर लिया। ओके मैम, ठीक है? यस मैम, अभी भी किसी बच्चों को डाउट है? No, नो ma'am. मैम, नो मैम, नाउ यू सी द पास्ट में इसको क्या करोगे? पास्ट इवेंट, मेरी केम टू स्कूल, अनम्यूट करो, मेरी केम और मेरी वेंट टू स्कूल, गो वेंट गॉन होता है ना वर्ब फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, Yes, ma'am. सेकेंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म में। तो सेकेंड फॉर्म पास्ट टेंस मतलब आपको समझना चाहिए बेटा, वो सेकेंड फॉर्म होता है। तो गो का सेकेंड फॉर्म क्या होगा? What will be the Come on, second form of went. go? Went ma'am, Went. Gone. Yes. Went. Went is your second form, and third form is gone. Gone. हाँ, go, gone. went gone, Yes. So went होगा. So here you will see Raj went to school yesterday. वो स्कूल गया था, कल वो स्कूल गया था, राज स्कूल गया था। ओके, यस, क्लियर? यस मैम, यस बेटा, यस मैम, तो अब समझ में आ रहा है कैसे चेंज होता है? यस मैम, Yes, आ गया। ma'am. समझ में? और यदि हम थर्ड फॉर्म जो कि पास्ट पार्टिसिपल है, ओके, इस चीज को ध्यान देना बेटे, आप लोग मिस्टेक नहीं करना इस चीज को। यू सी थर्ड पार्ट जो है दैट इज योर पास्ट पार्टिसिपल। सो गो वेंट गॉन, गॉन है ना, दैट इज योर पास्ट पार्टिसिपल। जब भी आप पास्ट पार्टिसिपल लगाते हो तो गॉन से पहले हैव या हैड का प्रयोग होता है। क्लियर? किसका प्रयोग होता है? हैव और हैड। कुछ समझ में आया या नहीं आया? मैम समझ आ गया। आ गया? मैम आ गया। आ गया जो मैम, पास्ट पार्टिसिपल है ना बेटा, तो उसको लिखोगे जब तो आपका हैड और हैव का प्रयोग होता है जब भी आप लोग सेंटेंस में लिखोगे तो। फॉर एग्जाम्पल राज हैड गॉन टू स्कूल, राज हैड गॉन टू स्कूल। यदि शी लगाओगे तो भी हैड होगा और हैज होगा, हैज, Had. हैव,